Hello friends, welcome to Geography Nest. So today we will see about the rocks and minerals, and definitely for the UGC net perspective. But here to mention that if you need the PDF version of this document, okay, so definitely it have take a lot of time, so you can WhatsApp in the given number and just for a little payment you can take this PDF, okay, no issue. And so let's start. So this is PDF is made from Geomorphology book by Shavendra Singh and other compilation from web resources, right? Okay, so here this is not that kind of in detail, but we will discuss only the most important part, that is properly exam related, and the decision is taken only after the, that means the topics are decided only after the analysis of previous year questions papers, that how questions are asked in the previous year. And definitely at the end I will give you some previous year question paper asked actually, and you can relate the topic, and whatever I will teach you or share with you, you will relate that yeah, these topics are very important. Okay, I am not just saying so, it is actually important, that's why I am saying. Okay, so let's start. So most abundant elements on earth is, first is iron, then oxygen, then silicon, then magnesium. What? So iron, oxygen, silicon, magnesium. उसके बाद आती है ये सारे क्या, निकल, सल्फर, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. तो ये आपको क्या है ना, वो सीक्वेंस वाइज पूछे जा सकती है, ठीक है, एग्जाम में, कि इसको अरेंज कीजिए, ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर और लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर, आई मीन व्हिच वन इज द मोस्ट अबंडेंट एंड टू द लीस्ट अबंडेंट, इन दिस ऑर्डर अरेंज द आइटम. सो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स ऑन अर्थ, if it is asked that most abundant elements on earth, okay, that means entire earth, then iron is the most abundant element. Next come the oxygen, then silicon, then magnesium, then nickel, sulfur, calcium and aluminum. So what? Iron, oxygen, silicon, magnesium, then nickel, sulfur, calcium and aluminum. So these four are most important. You should remember that iron, oxygen, silicon and magnesium, these are the four most abundant elements on the entire earth, right? On the entire earth, from the highest to lowest order. Iron is the highest, then oxygen, then silicon, then magnesium, then nickel, sulfur, calcium, then aluminum. Okay, fine. Now here most abundant elements on the earth crust, we are considering only the shell part of the earth, that is the crust, only the upper portion of the earth. So that is on the earth crust, most abundant elements, among most abundant elements, oxygen ranks the first. Okay, most abundant elements, oxygen has the highest, then silicon, then aluminum, then iron. Here you can see that here on earth iron is the first rank, but on earth crust iron occupies the fourth rank. Okay, so I hope you have understood this difference between on earth and on earth crust, right? So you should remember these components. On earth it is iron, oxygen, silicon and magnesium. On earth crust it is oxygen, silicon, aluminum and then iron, right? Oxygen, silicon, aluminum and iron. Oxygen, silicon, aluminum and iron. You should remember this sequence wise. Then magnesium, calcium, potassium, sodium. Magnesium, calcium, potassium, sodium. So first on earth crust most abundant element is oxygen, next is silicon, next aluminum and then iron. On earth first is iron, then oxygen, then silicon, then magnesium. Okay, I hope it is clear now. Okay, let's move to the next slide. So what is the next slide? Let's see that important mineral groups. So what are the important mineral groups? There are mainly 7 important mineral groups on the earth. Okay, so we will study them one by one. So first one is silicates. First mineral group is silicates. तो silicates के अंदर क्या क्या आती है ना, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, फेरोमैग्नीशियम minerals. These four are the silicates mineral group, right, or belongs to the mineral group of silicates. Quartz,
feldspar, mica and ferromagnesium. Quartz, feldspar, mica and ferromagnesium. Now you have to remember, this is very important, that under ferromagnesium mineral group, under ferromagnesium minerals, or what are the ferromagnesium minerals? I think a question was asked and I got a question such that related to that. That's why I have given importance to it, that ferromagnesium minerals, under ferromagnesium minerals, what are the minerals are there? That is 4 minerals are there under ferromagnesium minerals. Number 1 is olivine, then pyroxene, then amphibole and biotite. Olivine, pyroxene, amphibole and biotite. These 4 are the ferromagnesium minerals. Okay. So silicates, under silicates we have got 4, that is quartz, feldspar, mica and ferromagnesium. Again under ferromagnesium minerals we have 4, that is olivine, pyroxene, amphibole and biotite. Pyroxene, olivine, amphibole and biotite. Okay. Now move to the next slide. It is carbonates. So carbonates are basically 2, that is calcite and dolomite. Carbonate group of minerals, 2 minerals are mainly there, that is, or can be divided, carbonates can be divided into 2, that is calcite and dolomite. Next is sulfides. So galena, pyrite, these are sulfides. Galena, pyrite, these are sulfides. Okay, galena and pyrite, these are sulfides. Most important is the first group, that is first mineral group, that is your silicates. Okay, that is your silicates. So this is the most important at mineral group. You should remember this, that is quartz, feldspar, mica, ferromagnesium minerals. These are the 4 most important mineral under the silicate mineral groups, and under ferromagnesium you have 4, that is olivine, pyroxene, amphibole and biotite. Next is carbonates, this is calcite and dolomite, then sulfides, galena and pyrite, then आपका आते हैं oxides. So here hematite and limonite, this belongs to oxides group, oxides mineral group. Then sulfates, तो sulfates का example होगा gypsum, barite. Okay, sulfates, these are sulfate mineral groups. Now this is native elements. So native elements, what is native elements? I mean native minerals, right? So have single elements in them, that they are called native elements. So we can divide these native elements into 2, that is metallic and non-metallic. Metallic and non-metallic. Under metallic we have gold and copper. Under non-metallic we have diamond and graphite. Under non-metallic we have diamond and graphite, right? So non-metallic, diamond and graphite, metallic, gold and copper. These are native elements. Next हैलाइड्स. हैलाइड्स के अंदर आता है आपका हैलाइट एंड फ्लोराइड. हैलाइट एंड फ्लोराइड, यहाँ पर देखो, हैलाइट इज यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन, स्नो रिमूवल, वाटर सॉफ्टनर्स एटसेट्रा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रॉक्स. सो हमने पढ़ लिया कि मिनरल ग्रुप्स, 7 mineral groups are there. What are they? So if we see that first one was silicates, then carbonates, this is 2, third is sulfides, fourth is oxides, fifth is sulfates, and sixth is native elements, and seventh is halides. So these are the 7 mineral groups. Okay, now we will see the types of rocks. So we all know that there are 3 basic types of rocks, or main types of rocks. First one is igneous, second is sedimentary, and third is metamorphic. So under them, igneous rocks, examples of igneous rocks: basalt, granites, diorite, mica, quartz. You should know that. Suppose you have given a list with basalt, diorite, quartz and quartzite, and the question is that identify the मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक्स. ओके, सो बेसल, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज एंड क्वार्टजाइट, इनमें से कौन सी जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है. तो सही आंसर क्या आ गया तब? क्वार्टजाइट होगा. ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, दो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. यू कैन see if you can point out, but definitely it is confusing, right? Okay, and it's now you need to remember all the rock types and the examples of the rock types, otherwise you can't attempt that question. So you should remember these names. These are the very important rocks that I have listed here. That is igneous is basalt, granite, diorite, mica and quartz. Under sedimentary we have limestone, sandstone, chalk, conglomerate,
डोलोमाइट, जिप्सम, सॉल्ट रॉक्स, पीट, कोल, पेट्रोलियम, सेल्स एंड क्ले। तो पेट्रोलियम भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, कोल भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, चॉक, कॉन्ग्लोमरेट, डोलोमाइट, जिप्सम, सॉल्ट रॉक्स, पीट, कोल, पेट्रोलियम, सेल्स एंड clay, all are the sedimentary rocks. Now come to the metamorphic rocks. So we have gneiss, marble, slate, quartzite, graphite, schist, phyllite. All these are the examples of metamorphic rocks. What are they? Gneiss, marble, slate, quartzite, graphite, schist and phyllite. All are the examples of metamorphic rocks. Now igneous plus metamorphics, these consist about 95% of the earth. Okay, so 95% of the earth is made up of igneous and metamorphic rocks. So definitely igneous is given in the first position. So definitely igneous rocks is the most abundant among all the three types of rocks. Okay, so if you need to if you said to arrange the rock types, then igneous is the first, then metamorphic, then comes the sedimentary. It is about 5% of the earth surface. Okay, so you should remember this information, right? You can say so that arrange the rock types or like that question. Okay, next move to the next slide. So now we will see the classification of igneous rocks. So many on the various basis we can classify actually the igneous rocks. So here we will see the based on mineralogical composition first. So based on mineralogical composition, igneous rocks are classified into three or more are there. Let me see just one second. Yes, so there are based on mineralogical composition there are three types of igneous rocks. Number one is felsic igneous rocks. Felsic igneous rocks. Igneous rock can be divided into three. First one is felsic igneous rocks. It contains more than 65% silica. That is called felsic igneous rocks. Okay, composed of light minerals like quartz and feldspar and having rich content of silica. As we are saying that's more than 60% of silica, so definitely having a rich content of silica and composed of light minerals like quartz and feldspar. Okay, next type is mafic igneous rocks. So 45 to 55% of silica content is here, mafic igneous rocks, and composed of dark minerals such as pyroxene, amphiboles and olivines, having high rich contents of magnesium and iron. Having high rich content of magnesium and iron. So mafic igneous rock, here content of magnesium and iron is more. In felsic igneous rock, there is quartz and feldspar is the main component. Okay, and mafic igneous rocks, magnesium and iron is the main component, right? Now ultramafic. So this is less than 45% silica. Less than 45% silica is called ultramafic rocks. Abundance of pyroxenes and olivine minerals. Example of peridotite. Peridotite rich in pyroxene and olivine. Then dunite rich in olivines, etc. So peridotite, dunite, these are some examples of the ultramafic rocks, right? And pyroxenes, amphiboles, olivines, these are examples of mafic igneous rocks. And क्वार्ट्ज फेल्सपार हो गया आपका फेल्सिक igneous rock का एग्जाम्पल. ओके, those with between 55 and 65% silica are intermediate. Those in between 55% and 65%. Okay, so more than 65% is called as felsic, and up to 55% is called as mafic, and in between 55 and 65 we call them as intermediate. So this is not that much of important. Okay, you can skip this part. Okay, let's move to the next slide. So based on silica content, igneous rocks can be divided into four types. What are they? Number 1, acid igneous rocks. Number 2, basic. Number 3, intermediate. And number 4, ultra basic. Okay, so अब देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या होती है वन बाय वन. सो एसिडिक igneous रॉक जो होती है इसका देखो सिलिका कंटेंट कितना होता है 65 to 85%. नाउ ये लैक इन फेरम एंड मैग्नीशियम, हार्ड एंड इरोशन रेजिस्टेंट. एग्जाम्पल ग्रेनाइट. ठीक है, एसिडिक igneous रॉक एग्जाम्पल हो गया ग्रेनाइट. ओके,
नाउ बेसिक का जो सिलिका कंटेंट है, एज वी आर बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट वी आर डिवाइडिंग दिस, सो डेफिनेटली सिलिका इज़ द मेन कंपोनेंट। एंड बेसिक का जो सिलिका कंटेंट है वो 45 to 60% है, राइट। और ये जो है यहाँ पर देखिए एसिड में क्या था, लैक इन फेरम एंड मैग्नीशियम था, और बेसिक में फेरम यानी आयरन एंड मैग्नीशियम डोमिनेटेड है, ठीक है। ये हेवी एंड डार्क है, बेसिक जो है बेसिक इग्नियस रॉक हेवी एंड डार्क होता है एंड इजीली एरोडेड। एग्जाम्पल basalt, gabbro, dolerite, basalt, gabbro and dolerite, right? So they are easily eroded, heavy, dark but easily eroded, and acidic igneous rock hard and erosion resistant like granite. Now come to the intermediate part. So this is nothing but less than acid, the silica content less than acid, मतलब this is less than 65 and more than basic, that is more than 45, okay, more than 45। तो कुछ इस तरीके सा जो है वो इंटरमीडिएट में, मतलब इन दोनों का बीच का, तो आई थिंक 45 तो नहीं होगा, मोर देन बेसिक, मतलब ये 60 से 65 तक का कुछ बात कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हो। और नेक्स्ट आता है अल्ट्रा बेसिक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि बेसाल्ट के नेचर क्या है, बेसिक है, और ग्रेनाइट का नेचर क्या है, एसिडिक है, ठीक है। ग्रेनाइट जो है ये हार्ड एंड इरोजन रेजिस्टेंट है, और बेसाल्ट जो है ये हेवी एंड डार्क है बट इजीली एरोडेड है, राइट। नाउ अल्ट्रा बेसिक की बात करें तो ये सिलिका कंटेंट लेस देन 45% है। एग्जाम्पल हो गया आपका पेरिडोटाइट, ओके, सिलिका कंटेंट लेस देन 45% है, एग्जाम्पल हो गया पेरिडोटाइट। तो पेरिडोटाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रा बेसिक इग्नियस रॉक। नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्सचर ऑफ क्रिस्टल्स, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये हॉलो हायालाइन, हॉलो क्रिस्टलाइन, ये जो टर्म्स होती है ये काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हॉलो हायालाइन जो होता है ये क्या है ना, नो क्रिस्टल, हॉलो हायालाइन यहाँ पर नो क्रिस्टल, ठीक है। रॉक कंपोज्ड एंटायरली ऑफ ग्लास टाइप जो रॉक होती है उसे हॉलो हायालाइन बोला जाता है। इंडिकेट्स रैपिड कूलिंग, जिसे कहते हैं क्वेंचिंग कहते हैं कि रैपिड कूलिंग, जहाँ पर तुरंत जो लावा निकलते ही जम जाते हैं उसे हम रैपिड कूलिंग को हम बोलते हैं क्वेंचिंग, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है हॉलो हायालाइन जो रॉक्स है वो क्वेंचिंग प्रोसेस से थ्रू फॉर्म होती है, ये काफ़ी तुरंत ही जो है कंडेंस्ड हो जाती है, ठीक है, या कूल्ड हो जाती है, इसलिए इसको ग्लास फॉर्म में ये फॉर्म करती है। इसमें कोई क्रिस्टल नहीं होता है, जैसे कि हम ग्लास में क्रिस्टल्स नहीं होते, ऐसे ही इस तरीके के रॉक को हम बोलते हैं हॉलो हायालाइन, ओके। नेक्स्ट हॉलो क्रिस्टलाइन, यहाँ पर एंटायरली ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्या है ना, इसका पूरा उल्टा है हॉलो क्रिस्टलाइन, ठीक है। हॉलो हायालाइन मतलब नो क्रिस्टल एंड हॉलो क्रिस्टलाइन मतलब फुल्ली क्रिस्टलाइज, ठीक है, एंटायरली ऑफ क्रिस्टल्स, इंडिकेट्स दैट कूलिंग वाज सफिशिएंटली स्लो, मतलब धीरे धीरे करके ये कूलिंग हुआ था मैग्मा का या लावा का, ओके। नाउ थर्ड वन इज हिपोक्रिस्टलाइन और हायालोक्रिस्टलाइन, हिपोक्रिस्टलाइन और हायालोक्रिस्टलाइन, ओके। यहाँ पर क्या है ना, कॉम्पोज्ड ऑफ बोथ क्रिस्टल्स एंड ग्लासेस, मतलब इन दोनों का पूरा मिक्सचर करके जो बनेगा वो होगा आपका हाइपोक्रिस्टलाइन या हायालोक्रिस्टलाइन। So based on texture we got 3 types of igneous rocks. Number 1 hollow hyaline, that is no crystal, just looks like glasses or glass, and it is formed through the process of quenching, that means rapid cooling. Second one is hollow crystalline, it is completely reverse or opposite to the hollow hyaline, here entirely of crystals or sufficient crystals are developed, okay, and it indicates that there was not rapid cooling but this is a gradual cooling process has been occurred in the formation of this type of rocks and what else and entirely of crystals, ये तो बोल दिया, ठीक है। अब तो इतना आप याद रख लो। और तीसरी होती है आपका हिपोक्रिस्टलाइन या
हायालो क्रिस्टलाइन। ये क्या है, सिर्फ इन दोनों का मिक्सचर है, मतलब थोड़ी क्रिस्टल्स भी होंगे, थोड़ी ग्लास टाइप का भी होंगे, कुछ ऐसे करके आपका मिक्सचर बना के कुछ इसका कोई एग्जाम्पल तो यहाँ पर हमने नोट नहीं किया है, ठीक है, आगे जाके देखते हैं, अगर कुछ मिला तो मैं बता दूंगा। ओके, नाउ फाइन वॉल्केनिक मटेरियल्स व्हेन डिपॉजिटेड इन एक्वाटिक कंडीशंस आर कॉल्ड टाप्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टाप्स क्या होती है। तो टाप्स क्या होती है ना, देखो टाप्स क्या होती है कि फाइन वॉल्केनिक मटेरियल्स व्हेन डिपॉजिटेड इन एक्वाटिक कंडीशंस दे आर कॉल्ड टाप्स, राइट। So they are fine volcanic materials and deposited in aquatic conditions. So taps have two properties you should remember. Number one, these are volcanic materials and fine volcanic materials, right? And they are deposited under aquatic conditions. Okay. ये स्टेटमेंट डिजाइन में आपका आ सकता है, तो याद रखिएगा कि टप्स क्या है, कैसे फॉर्म करती है। ये एक्वाटिक कंडीशन में फॉर्म होती है और ये कंपोज्ड ऑफ फाइन वॉल्केनिक मटेरियल्स। अब आती है बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑकरेंस। तो ये सारे ये जो है ये हम बचपन से ही पढ़े हैं, ये बहुत कॉमन है। जैसे कि बेस्ड ऑन मोड ऑफ ऑकरेंस, कहाँ फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, वी ऑल नो इंट्रूसिव इज अंडर द क्रस्ट एंड एक्सट्रूसिव इज अबव। ओके, सो इंट्रूसिव जो होती है ये कोर्स ग्रेन्ड होती है और एक्सट्रूसिव या वॉल्केनिक जो होती है ये फाइन ग्रेन्ड होती है। एंड इंट्रूसिव का एग्जांपल आपका ग्रेनाइट हो गया, डायोराइट हो गया, गैब्रो हो गया, पेग्माटाइट हो गया, पेरिडोटाइट हो गया। ओके, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का एग्जांपल आपका हो गया बेसल्ट, एंडेसाइट, प्यूमाइस, राइट, रायोलाइट, गैब्रो एंड ऑब्सीडियन। तो ये जो कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स है ये आपको याद रखना चाहिए। और प्योर वॉल्केनिक ग्लास इज नोन एज ऑब्सीडियन। प्योर वॉल्केनिक ग्लास इज नोन एज ऑब्सीडियन। ओके, प्योर वॉल्केनिक ग्लास इज नोन एज ऑब्सीडियन। तो इंट्रूसिव रॉक्स में क्या क्या आते हैं आपका, पहला तो आती है ग्रेनाइट, ये बेसिक सबसे मतलब हमने पढ़ा हुआ ऐसा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और दूसरी आपका एक्सक्लूसिव हो गया आपका बेसल्ट, ठीक है। बट काफ़ी बार यहीं पर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं हम, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा कि ग्रेनाइट क्या है, इंट्रूसिव है और प्लूटोनिक है, मतलब अंदर फॉर्म होती है, और एक्सक्लूसिव या वॉल्केनिक या बाहर जो फॉर्म होती है उसके एग्जाम्पल हो गया आपका बेसल्ट के साथ आती है एंडेसाइट, प्यूमाइस एंड ऑब्सीडियन। तो ये ऑब्सीडियन क्या है ना, प्योर वॉल्केनिक ग्लास इज नोन एज ऑब्सीडियन। प्योर वॉल्केनिक ग्लास इज नोन एज ऑब्सीडियन, मतलब बाहर आते ही कूल्ड हो गया, ठीक है, कूलिंग हो गया और ये पूरा ग्लास की तरह फॉर्म हो गया। तो डेफिनेटली ये ऑब्सीडियन एक एक्सक्लूसिव वॉल्केनिक रॉक है, तो इसे हम बोलते हैं ऑब्सीडियन। और ग्रेनाइट के साथ क्या क्या जाएगा, डायोराइट, गैब्रो, पेग्माटाइट एंड पेरिडोटाइट, ठीक है। डायोराइट, गैब्रो, पेरिडोटाइट एंड पेग्माटाइट। बेसल्ट के साथ आएगा एंडेसाइट, प्यूमाइस, रायोलाइट, गैब्रो एंड ऑब्सीडियन। व्हाट इज ऑब्सीडियन, प्योर वॉल्केनिक ग्लास इज नोन एज ऑब्सीडियन। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ से स्टार्ट होती है आपका सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। नाउ यहाँ पर देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स 75% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय सेडिमेंटरी रॉक्स। Igneous and metamorphic rocks cover the remaining 25%. But sedimentary rocks constitute only 5% of the composition of the crust. ऐसा एक इन्फॉर्मेशन हम पहले भी पढ़ चुके थे, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या लिखा था कि 95% जो है वो आपका इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म करती है और बाकी जो होती है वो 5% सेडिमेंट्री रॉक होती है। तो वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको याद दिला रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पर मेरे को भी थोड़ा कन्फ्यूज लग रहा है, बट कुछ ऐसा ही था सविंद्र सिंह में, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अर्थ सरफेस मतलब तो क्रास्ट ही हम समझते हैं ना, फिर भी यहीं पर बस क्रास्ट की बात कर रहा है, तो मतलब अर्थ सरफेस मतलब क्या बोल रहा है तब। तो 75% ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय सेडिमेंटरी रॉक्स एंड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कवर द रिमेनिंग 25%। सो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज मेरे को भी हो रहा है, तो आप अगर आपको समझ में आया है या आपको पता है पहले से तो ज़रूर यहाँ पर कमेंट करिए आप, ठीक है, ताकि मेरे को भी पता चले। मैं ट्राई किया था लेकिन मेरे को और कहीं मिला नहीं, ठीक है, तो मैंने जस्ट यही नोट किया है। इंटरनेट पे तो ये सारे नहीं मिला पहली बात, और ज़्यादा कुछ बुक्स वगैरह अभी तक नहीं है मेरे पास अभी, तो मैं सिर्फ सविंद्र सिंह से ही उठाया है, ठीक है। तो आपको अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है लोचा, ठीक है। आप पहले अच्छे से देखो फिर समझो, उसके बाद आप कमेंट करके बता सकते हो जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं।
तो यहाँ पर देखो कुछ स्टेटमेंट्स जो है, द साइज ऑफ सेडिमेंट्स डिक्रीजेज फ्रॉम द लिटरल मार्जिन्स टू द सेंटर ऑफ द वाटर बॉडीज। ठीक है, ये पूरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है डायरेक्टली। तो द साइज ऑफ सेडिमेंट्स डिक्रीजेज फ्रॉम द लिटरल मार्जिन्स टू द सेंटर ऑफ द वाटर बॉडीज। डेफिनेटली समंदर के किनारे पर जो ये साइज होती है, ठीक है, सेडिमेंट की, ये क्या होती है कि जितना हम इसे हम लिटरल जोन बोलते हैं, जितना तक ये जो है समुंदर के अंदर जाते हैं, तो ये जो साइज ऑफ सेडिमेंट है वो उसका साइज डिक्रीज होता है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन सेवरल लेयर्स ऑफ स्ट्रेटा बट दीज आर सेल्डम क्रिस्टलाइन रॉक्स, दे आर नॉट क्रिस्टलाइन and like igneous sedimentary rocks are not found in massive forms such as batholiths, laccoliths, dikes etc. क्या like igneous sedimentary rocks are not found in massive forms such as batholiths, laccoliths, dikes etc. ठीक है, नहीं मिलता। तो मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो बात कर रहा है ना, ये देखो, ये जो 75% ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय सेडिमेंट्री रॉक्स, आई थिंक ये बात कह रहा है कि कवरेज की, मतलब ये जो है कि कितने, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, ज़्यादातर क्या है कि 70% से भी ज़्यादा ओशियंस है, ठीक है, यानी वाटर बॉडीज है। तो डेफिनेटली वहाँ पर तो सेडिमेंट पा जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आई थिंक ये जो लेयर की बात कर रहे हैं या कवरेज की बात कर रहे हैं कि हाँ इतने इतने 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, मतलब उसका एक चादर बिछा हुआ है, ऐसा बात कर रहा है। अगर डेप्थ में जाया जाए तो समुद्र के अंदर भी तो क्या है कि इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। तो इसलिए ये क्रस्ट की बात कर रहा है सिर्फ, और ये सिर्फ अर्थ सरफेस की बात कर रहा है, मतलब ऊपर ऊपर जितना है, ठीक है। तो हम प्लेट तक नहीं जा रहा है, कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसा ही कुछ लोचा यहाँ पर चला गया, ठीक है। तो इस पर और भी देखना पड़ेगा मेरे को। अभी के लिए इतना ही, आपको मेरे को जो समझ में आया था बता दिया। अब हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स पर। तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सेडिमेंट्स हम क्या करते हैं कि नेचर ऑफ सेडिमेंट्स, हम सेडिमेंट्री रॉक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया मैकेनिकली फॉर्म्ड, दूसरी हो गया केमिकली फॉर्म्ड या ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। तो नेचर ऑफ सेडिमेंट्स भी कह सकते हैं या फिर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं हम, है ना, बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, मतलब रॉक्स कैसे फॉर्म हुआ। तो मैकेनिकली फॉर्म्ड मतलब यहाँ पर देखो सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, क्ले रॉक, सेल, सिल्ट, लोएस, ये सारे जो होती है मैकेनिकल। जैसे कि लोएस आपका ओइन डिरोशन के वजह से होती है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब बहुत सारे जो है नूरी वगैरह एक साथ मिल के एक कंडेंस्ड हो जाती है या स्ट्रक्चर्ड हो क्या होती है वो मोटर की तरह हो जाती है, ठीक है, तो उसे कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं हम। ऐसे सैंडस्टोन हो गया, क्ले रॉक हो गया, ये सारे जो है सैंडस्टोन मतलब वाटर बॉडीज के अंदर बहुत दिनों से वो जो पोली बाली नूड़ी कांकड़ इत्यादि आपका जो है लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होते होते ड्यू टू प्रेशर के कारण वो एक रॉक फॉर्म हो जाती है, तो सैंडस्टोन हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारे प्रोसेस मैकेनिकली फॉर्म्ड है, मतलब मैकेनिकल एक वैसे हो रहा है। और केमिकली फॉर्म्ड बोले तो जिप्सम और सॉल्ट रॉक्स, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये भी दोनों ये केमिकली फॉर्म्ड होती है। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड बोले तो लाइमस्टोन, वी नो लाइमस्टोन एक ऑर्गेनिक ऑर्गन से मतलब एक प्राणी होती है, जैसे कि कोरल वगैरह में होती है, तो ऐसे ही फॉर्म होता है। और डोलोमाइट्स, कोल्स, ये तो हमको पता है, कोल्स पीट्स ये जो है ये भी प्लांट से फॉर्म होते हैं। तो डेफिनेटली ये सारे ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, सेडिमेंट्री रॉक्स को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो गया मैकेनिकली फॉर्म, दूसरा हो गया केमिकली फॉर्म, तीसरा हो गया ऑर्गेनिकली फॉर्म। अब मैकेनिकली फॉर्म के अंदर क्या आती है, सैंडस्टोन आती है, कॉन्ग्लोमरेट आती है, क्ले रॉक आता है, सेल और सिल्ट आता है, लोएस आता है। केमिकली फॉर्म में आता है जिप्सम एंड सॉल्ट रॉक्स, एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म में आता है आपका लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोल एंड पीट। क्ले रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑफ केओलिन मिनरल्स, ये आपको ध्यान में रखना है कि केओलिन मिनरल्स जो होती है ये क्या होती है, क्ले रॉक्स को फॉर्म करते हैं। मतलब क्ले रॉक्स के अंदर आपको कौन सी मिनरल देखने को मिलेगा, केओलिन मिनरल्स। अब प्योर क्ले रॉक्स आर ऑफ वाइट कलर, ये भी आप जान सकते हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा पर फिर भी आप जान के रख सकते हो। जैसे हम चाइना क्ले बोलते हैं, उसका काफ़ी टाइम में सोचता था कि ये चाइना क्ले इतना वाइट क्यों होती है, तो ठीक है, ये जो एक्चुअल में मतलब वाइट ही होना चाहिए। प्योर क्ले रॉक जो होती है उसका कलर हमेशा वाइट ही होती है। तो ये छोटी छोटी जनरल नॉलेज की टाइप की चीज़ है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। प्योर क्ले रॉक्स आर ऑफ वाइट कलर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं हम। ये बात देख सकते हो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री। तो
ऑन द बेसिस ऑफ लाइम एंड कार्बन कंटेंट ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। मतलब ये जो हमने पढ़ा ना अभी कि ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स, ये ऑर्गेनिक, ये तो एग्जांपल हो गया कि लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोल स्पिट्स। बट हम क्या करते हैं कि उससे फिर आप कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब 3 टाइप में हम यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं कि ऑर्गेनिकली सेडिमेंट्री रॉक जो होती है उसे हम फिर से 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया आपका कैलकेरियस, दूसरा हो गया कार्बोनेशियस, तीसरा हो गया सिलिशियस। तो किसके बेसिस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइम एंड कार्बन कंटेंट, ठीक है। इसके बेसिस पे हम तीनों टाइप पे डिवाइड कर सकते हैं, कैलकेरियस, कार्बोनेशियस एंड सिलिशियस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो देखेंगे क्या है कि कैलकेरियस रॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये ऑल्सो नोन एज कार्बोनेट्स, ये फॉर्म फ्रॉम एनिमल स्केलेटन्स। एग्जाम्पल हो गया लाइमस्टोन, डोलोमाइट, चॉक्स, ये सारे जो है ड्राइव्ड फ्रॉम फोरामिनिफेरा। मतलब ये चॉक्स जो है फोरामिनिफेरा नाम की एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ से ड्राइव किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे एनिमल वगैरह की जो हड्डियाँ होती है उससे हम बनती है ये सारे रॉक्स, ठीक है। एंड लाइमस्टोन इज वीक इन ह्यूमिड एरियाज बट रेजिस्टेंट इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइमस्टोन इज वीक इन ह्यूमिड एरियाज बट रेजिस्टेंट इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स। आफ्टर वेदरिंग एंड इरोशन कार्बोनेट्स गेव बर्थ टू कर्स्ट टोपोग्राफी। आफ्टर वेदरिंग एंड इरोशन कार्बोनेट्स गेव बर्थ टू कर्स्ट टोपोग्राफी। मतलब कर्स्ट टोपोग्राफी के बारे में हमको पता है। तो ये कैसे फॉर्म होती है? लाइमस्टोन टोपोग्राफी पर, लाइमस्टोन रॉक्स पर फॉर्म होती है, ठीक है। तो कैसे फॉर्म होती है ना? वेदरिंग एंड इरोशन के कारण वहाँ पर कर्स्ट टोपोग्राफी फॉर्म होती है। और लाइमस्टोन जो है ये वीक होता है इन ह्यूमिड एरियाज बट रेजिस्टेंट होता है इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स। अब आते हैं कार्बोनेशियस रॉक पर। तो डेफिनेटली नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ड्राइव फ्रॉम प्लांट रिमेन्स, कार्बन है। तो द इनिशियल फॉर्म इज पीट, ठीक है, ऑफ डार्क ग्रे कलर। देन पीट से हो जाती है आपका लिग्नाइट, देन होता है बिटुमिनस, देन होता है एंथ्रेसाइट। दिस इज नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, ओके। सो ये होती है आपका कार्बोनेशियस रॉक्स मतलब कोल। देन ड्यू टू वेट एंड प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग डिपोजिट्स, ये कैसे फॉर्म होती है? ये जो पीट से लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट से बिटुमिनस बन जाता है, देन एंथ्रासाइड बन जाता है, सबसे उन्नत माने उन्नत कोल बोल सकते हैं हम। तो ये कैसी फॉर्म होती है? ड्यू टू वेट एंड प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग डिपोजिट्स, ड्यू टू वेट एंड प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग डिपोजिट्स। तो ये आप नोट कर सकते हो। आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, सिलिशियस रॉक्स। तो ये क्या होते हैं कि डोमिनेंस ऑफ सिलिका, डेफिनेटली नाम से ही पता चल रहा है कि डोमिनेंस ऑफ सिलिका जरूर होंगे। आप ड्राइड फ्रॉम स्पॉन्ज एंड रेडियोलेरियन ऑर्गेनिजम्स एंड डायटम प्लांट्स, ये मेनली आपकी समुद्र में पाई जाती है। तो डेराइव्ड फ्रॉम स्पॉन्ज एंड रेडियोलेरियन ऑर्गेनिजम्स एंड डायटम प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो क्या है एक बार देख लेंगे हम, ठीक है। और ज़्यादा नहीं है, बस तो थोड़ी बहुत स्लाइड्स हैं यहाँ पर। अच्छा, तो सेडिमेंट्री रॉक्स बेस्ड ऑन ग्रेड साइज, हाँ इस पर एक साल प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली ऐसे ही पूछा गया था। मतलब ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये नहीं दिया गया था, बट आपको ये टर्म्स दिया गया था और इसका एक्सप्लेनेशन मतलब जो है कंपोजिशन के बारे में आपको पूछा गया था। तो जरूर ये आप नोट करिए और ध्यान में रखिएगा। देखिए बेस्ड ऑन ग्रेड साइज, ठीक है, मतलब जो ग्रेड साइज होती है, ठीक है, जो भी उसमें जो होती है सैंड वगैरह, ठीक है, रॉक फ्रैगमेंट्स की जो साइज होती है उसके बेसिस पे हम सेडिमेंट्री रॉक्स को 4 टाइप के डिवाइड कर सकते हैं। पहले हो गया आपका रूडेशियस, ये क्या है ना, ग्रावेल, पेबल, कॉबल एंड बोल्डर से फॉर्म होती है। कॉम्पोजिट ऑफ ग्रावेल, पेबल्स, कॉबल्स एंड बोल्डर से फॉर्म होती है। देन एरेनेशियस, ये आपका सैंड ग्रेड की चीज़ है, ठीक है, कॉन्सिस्टिंग ऑफ सैंड ग्रेड लाइक सैंडस्टोन, ग्रीट्स एटसेट्रा। तो ये हो गया आपका एरेनेशियस। रूडेशियस रूड, ये सबसे क्या है, ग्रेड साइज सबसे ज़्यादा है इसका। ग्रावेल, पेबल, कॉबल्स मतलब नुड़ी जैसे कि होती है, ऐसे बोल्डर्स ये वगैरह। एरेनेशियस यहाँ पर देखो सैंड हो गया, सैंड ग्रेड वाली चीज़ है ये एरेनेशियस। देन आपका आती है सिल्ट रॉक्स, तो ये क्या होती है ना, सिल्ट ग्रेड की। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये सिल्ट ग्रेड की है। अब आर्जिलेशियस, तो आपको याद रखने वाली चीज़ जो है ये रूडेशियस, अगर आपको याद रखे रूड, ठीक है, रूड मतलब इसका साइज सबसे ज़्यादा है। देन आपका एरेनेशियस, ये तो सैंड हो गया। सिल्ट रॉक्स, ये आपका सिल्ट हो गया। अब एर्जिलेशियस में क्या है ना, कॉन्सिस्टिंग ऑफ मड, डस्ट एंड क्ले, ठीक है। तो मड, डस्ट, क्ले ये सारे चीज़ जब आएंगे तब उससे हम बोलेंगे, उस ग्रेड को हम बोलते हैं आर्जिलेशियस, ठीक है। तो ये रूडेशियस, एरेनेशियस, सिल्ट रॉक्स एंड आर्जिलेशियस, ये हम ग्रेड के साइज के अनुसार सेडिमेंटेड रॉक्स को क्लासीफाई करते हैं चारों कैटेगरी में। अब आती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो
मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है ना, प्रोटोलिथ रेफर्स टू द ओरिजिनल रॉक प्रियर टू मेटामॉर्फिज्म। मतलब कोई रॉक एक था, ठीक है, एक रॉक था यहाँ पर, तो ये इससे कन्वर्ट होकर तो हम मतलब किसी एक रॉक से और एक रॉक फॉर्म हो रहा है, ठीक है, किसी एक से और एक टाइप की रॉक फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उससे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो जब इस प्रोसेस हो जाती है तो पहले जो रॉक था इसे हम बोलते हैं प्रोटोलिथ, ठीक है, इसका अच्छी नाम क्या है ना, प्रोटोलिथ। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर चेंज्ड इन फॉर्म और कॉम्पोजिशन विदाउट डिसइंटीग्रेशन। तो इसका मेटामॉर्फिक रॉक का डेफिनेशन ओरसेस्टर ने दिया था, बहुत ही अच्छी शॉर्ट है, क्या है ना, चेंज्ड इन फॉर्म और कॉम्पोजिशन। मतलब इसका क्या है ना, कोई वेदरिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है, कुछ भी डिसइंटीग्रेशन कुछ नहीं होता, पर फिर भी ठीक है, मतलब अंदर से ही इसे बिना तोड़फोड़ करके ही अंदर से ही ऑटोमेटिकली इसका जो फॉर्म और कॉम्पोजिशन है ये चेंज हो जाती है, तो अब उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये किसके वजह से होती है, डेफिनेटली हीट एंड प्रेशर के वजह से होती है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एजेंट्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, हीट, कंप्रेशन, सॉल्यूशन, मतलब जो केमिकल रिएक्शंस होती है सॉल्यूशन के वजह से भी मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म कर सकते हैं। अब धारोरी एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव सफर्ड इंटेंस मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, ये इतना बड़ी बात नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, आप इतना याद रख लो कि प्रोटोलिथ ये जो टर्म है ये याद रख लो, ठीक है। और क्या, और ये डेफिनेशन आप याद रख सकते हो कि चेंज इन फॉर्म और कॉम्पोजिशन, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक एक्चुअल में क्या होती है कि फॉर्म और कॉम्पोजिशन उसका चेंज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म, तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक नंबर हो गया आपका थर्मल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। थर्मल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म ये कब होती है ना, ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये होती है थर्मल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। जब वॉल्केनो होती है तब डेफिनेटली बहुत सारे हीट होता है, तो उसके कॉन्टैक्ट में आकर कुछ रॉक की चेंजेस हो गया कंपोजिशन का, तब उसे हम बोलेंगे कि हाँ ये थर्मल और कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म के बारे में कारण ये जो है मेटामॉर्फोज्ड हो गया। अब द मार्जिन्स ऑफ ऑल्टर्ड रॉक अराउंड इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड, क्या कर सकते हैं भाई, ये यहाँ पर कुछ लिखा था, ठीक है, देखते हैं हम। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। रीजनल और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म, ये पर क्या है ना, ऑकर्स ओवर लार्ज एरियाज। रीजनल डायनामिक मेटामॉर्फिज्म क्या होती है ना, ऑकर्स ओवर लार्ज एरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होती है कि ऑकर्स ओवर लार्ज एरियाज, जैसे कि माउंटेनज रीजन में ये सारे होती है, एंड नो रिलेशनशिप टू इग्नियस बॉडीज़, मतलब यहाँ पर कोई आग की या फायर या हीट की कोई इशू नहीं है यहाँ पर, बट प्रेशर प्लेज डोमिनेंट रोल, ठीक है। इसमें जो डोमिनेंट कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म में आपका कौन डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था कि जब वॉल्केनो हो रहा है तो उसकी जो हीट है वहाँ से आपकी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म हो रहा था, बट रीजनल और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म में प्रेशर प्लेज दी डोमिनेंट रोल and occurred in the course of fold or thrust mountain belts and in eroded mountain ranges। एग्जाम्पल हो गया स्लेट, शिस्ट, नीसेस, ठीक है, ये सारे आपका कैसे फॉर्म होती है ना, रीजनल और डायनामिक मेटामॉर्फिज्म के कारण ये सब स्लेट, शिस्ट एंड नीसेस फॉर्म होती है। अब देखते हैं अदर टाइप्स और क्या क्या है ना। कैटालिस्टिक मेटामॉर्फिज्म, तो रिजल्ट्स ऑफ मैकेनिकल डिफॉर्मेशन लाइक टू रॉक बॉडीज स्लाइड पास्ट वन अनदर, हीट जनरेटेड एंड रॉक डिफॉर्म, तो ये होती है कैटालिस्टिक मेटामॉर्फिज्म। जैसे कि हम न्यूट्रल जो प्लेट बाउंड्रीज होती है, ठीक है, उसमें होती है, या स्लाइड जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती है वहाँ पर जो होती है कैटालिस्टिक मेटामॉर्फिज्म होती है कि रिजल्ट ऑफ मैकेनिकल डिफॉर्मेशन लाइक टू रॉक बॉडी स्लाइड पास्ट वन अनदर, हीट जनरेटेड, रॉक डिफॉर्म, ठीक है। तो हल्की सी टच हुआ, 1 by 1 स्लाइड हो गया, 2 रॉक्स, ठीक है, रॉक बॉडीज, एंड वहाँ से जो हीट जनरेट हुआ उसमें से कुछ रॉक का मेटामॉर्फोज्ड हो गया, तो उसे हम बोलते हैं कैटालिस्टिक मेटामॉर्फिज्म। अब आती है हाइड्रोथर्मल मेटामॉर्फिज्म ना, कॉमन इन बेसाल्टिक रॉक्स, रिजल्ट इन रिच ओर डिपोजिट्स, ठीक है। द मेन मिनरल्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्यूराइल मेटामॉर्फिज्म इज जियोलाइट्स, देन द मिनरल्स असेंबल्ड इंडिकेट्स द टेम्परेचर एंड प्रेशर एनवायरनमेंट कॉल्ड मेटामॉर्फिक फेसिस, रॉक्स वाज सब्जेक्टेड टू, मतलब वो जो मिनरल असेंबलेज हम किसी रॉक में पाए जाते हैं उससे हम गेस कर सकते हैं कि वो रॉक किस टाइप के एनवायरनमेंट में बिलोंग करता था, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक फेसिस। अच्छा, अब देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स का कुछ एग्जांपल, जैसे कि ग्रेनाइट से अब हमारा बनता है नीस, तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। तो ये ग्रेनाइट को हम क्या बोलेंगे, अभी हमने यहाँ पर दिखा था एक टर्म प्रोटोलिथ, राइट, यहाँ पर हमने देखा प्रोटोलिथ, ये देखो, तो यहाँ पर प्रोटोलिथ कौन है, ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट से आपका मेटामॉर्फोज्ड रॉक होगा नीस, ठीक है। गैब्रो से सर्पेंटाइन, बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट, सेल से स्लेट, लाइमस्टोन से मार्बल, सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट, कोल से डायमंड, ग्राफाइट,
कॉन्ग्लोमरेट से आपका आती है फिर से नीश। नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे। यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल है, जैसे कि स्लेट से आपका हो गया फिलाइट, फिलाइट से हो गया सिस्ट, देन एंथ्रासाइट से हो गया ग्राफाइट, ग्राफाइट से हो गया डायमंड। एंड डोलोमाइट्स एंड चॉक्स आर ऑल्सो मेटामॉर्फोज टू मार्बल्स ड्यू टू एक्सेसिव हीट। मतलब चॉक से भी जो है मार्बल बन जाते हैं जब एक्सेसिव हीट के कारण। स्लेट्स आर फॉर्म ड्यू टू डायनामिक और रीजनल मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेल्स। तो हमने पहले भी पढ़ा जब रीजनल मेटामॉर्फिज्म, तो एग्जाम्पल पे था स्लेट्स का एग्जाम्पल हमने देखा था। अब ये मोव हार्डनेस ऑफ कॉमन मिनरल्स, ठीक है। तो काफ़ी टाइम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको अरेंज करने के लिए बोल दे कि हार्डनेस के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करो, ठीक है, या तो लोअर टू हायर ऑर्डर या हायर टू लोअर ऑर्डर। तो ये आप ज़रूर स्क्रीनशॉट लेकर, कोई काम नहीं बनेगा। तो आपको किसी तरह से आपको कुछ करने के मतलब कुछ शॉर्टकट निकाल के आपको ये किसी तरीके से आपको याद रखना है। अभी मेरे पास कोई शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है तो आपको मैं नहीं बता पाऊँगा, बट इतना मैं बता देती हूँ कि ये टैल्क जो होती है इसका सबसे लोएस्ट हार्डनेस होती है कितना, 1 होता है, ठीक है, टैल्क का। उसके बाद आती है ग्राफाइट, देन बॉक्साइट, लिमोनाइट, जिप्सम, सल्फर, हैलाइट, मास्कोवाइट, गैलिना, बायोटाइट, कॉपर, गोल्ड, कैल्साइट, डोलोमाइट। उसके बाद आती है मैग्नेसाइट, हॉर्नब्लेंड, मैग्नेटाइट, ऑगाइट, ऑर्थोक्लेज, ओलिवाइन, गार्नेट, क्वार्ट्ज, जारकॉन, टॉपाइज, कोरंडम एंड डायमंड। तो यहाँ से क्या हो रहा है, टैल्क से शुरू हो रहा है, मतलब ये सबसे लोएस्ट है। उसके बाद हमने डायमंड तक जा रहा है 10 तक। तो ये मोज का जो है हार्डनेस के स्केल है 1 to 10 तक, ठीक है। बाकी और भी सारे रॉक्स के लिस्ट था, बट मैंने इसे क्या किया, छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी बहुत सारे अनइम्पोर्टेंट रह जाएंगे, ठीक है, सारे नहीं आने वाला, बट आप पर्टिकुलरली कुछ रॉक का याद रख सकते हो, जैसे कि टैल का याद रखना है, ग्राफाइट का याद रखना है, बॉक्साइट का याद रखना है, ठीक है। तो बॉक्साइट मैक्सिमम देखो यहाँ पर 1 to 3 लेकर, देन लिमोनाइट 5 है, ठीक है, मतलब टैल का 1, ग्राफाइट का भी 2 हो सकते हैं, बॉक्साइट का 1 to 3 कुछ भी हो सकते हैं, 1 to 3, लिमोनाइट का 1 to 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इससे डोलोमाइट 3.5 to 4, ये सारे इंपॉर्टेंट है बहुत। मैग्नेसाइट जो है 3.5 to 5 है, हॉर्नब्लेंड 5 to 6 है, ओके। देन आपका तो क्वार्ट्ज का कितना है, 7 है, राइट। देन टॉपाज का 8 है, कोरंडम का 9 है, एंड डायमंड का हार्डनेस स्केल हो गया 10। तो ये आप याद रखो कुछ भी करके, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पूछा जा सकती है, यही बात है। अब देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दिखा दूंगा, और ये डोर स्टेप ट्यूटर से लिया गया है। मतलब उन्होंने, अब अगर आप सर्च करोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन रॉक्स इन द यूजीसी नेट एग्ज़ाम, तो ऐसे करके सर्च करने से आपका ये डोर स्टेप का एक पेज आएगा, और जहाँ पर आपको उस टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही फाइंड किया है, और मेरे को ये 4-5 क्वेश्चंस मिला है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो एसरसन देखो, पहला क्वेश्चन क्या मिला है, एसरसन रीजन टाइप का मिला है। एसरसन क्या बोल रहे हैं कि द बेसल्ट रॉक्स आर फॉर्म्ड ओवर द सरफेस व्हाइल ग्रेनाइट रॉक्स रीच द सरफेस ओनली बाय बीइंग एक्सपोज्ड बाय इरोशन। तो डेफिनेटली एसरसन इज ये ठीक ठाक है, ट्रू है, ठीक है। बेसल्ट इज वॉल्केनिक रॉक व्हाइल ग्रेनाइट रॉक इज प्लूटोनिक रॉक, तो ये भी सही है, बट आई थिंक ये एक रीज़न भी करेक्ट है, ठीक है। द बेसल्ट रॉक्स आर फॉर्म्ड ओवर द सरफेस बिकॉज दे आर वॉल्केनिक रॉक बाहर आ जाता है तो बाहर फॉर्म होती है, और दूसरे जो होती है वो बाहर नहीं आ पाते, अंदर ही फॉर्म होते हैं, बाद में जब इरोशन होता है तब बाहर आ जाते हैं। तो आई थिंक रीज़न एंड ये जो है बोथ आर करेक्ट, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब जाते हैं दूसरे पर, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए रॉक्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिया गया है। दीज रॉक्स आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटा रॉक्स। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स की ही बात कर रहे हैं, आपको एक फाइंड करना है जो इनकरेक्ट है, यानी नॉट करेक्ट, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेड अप ऑफ ब्रोकन मटेरियल्स ऑफ सेडिमेंट्री इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स। बेडिंग प्लेन्स आर ऑलवेज इंक्लाइंड। द प्लेन्स सेपरेटिंग डिफरेंट लेयर्स आर कॉल्ड बेडिंग प्लेन्स। तो आई थिंक दिस वन इज द रॉन्ग आंसर। बेडिंग प्लेन्स आर ऑलवेज इंक्लाइंड। ऑलवेज इंक्लाइंड कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो आई थिंक दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एंड आई डोंट यार, यहाँ पर ये वेबसाइट में जो है ना, आपको अगर आंसर दिखना है, ठीक है, तो आपको कुछ सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आंसर भी नहीं देख पाया, और आपके साथ यहाँ पर एक्चुअल जो आंसर है वो नहीं शेयर कर पाया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यही शायद सही होगा, ठीक है। अच्छा,
बट यही सही होना चाहिए इसका कारण। अगर आप मैंने अगर गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताएंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। यहाँ पर आई थिंक 4 क्वेश्चन है और यहाँ पर देखो एक मैच द फॉलोइंग जहाँ है, यहाँ पर क्या पूछा रहा है कि क्वार्टजाइट जो है ये किस टाइप की रॉक है। तो क्वार्टजाइट आपको कहाँ फंस जाएगा क्वार्टजाइट, तो पहले हम जिसको पता है वो कर लेते हैं। तो सैंडस्टोन आपका ये हो गया, आपका सैंडस्टोन जो है सेडिमेंट्री रॉक्स पे जाएगा, ठीक है। प्यूमाइस जो है ये आपका एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक प्यूमाइस, ठीक है, क्योंकि ये जब वॉल्केनिज्म होती है और उसके बाद वहाँ से निकलता है तो वही से मतलब टेफरा, तब उसके बाद जो भी निकलता है, ठीक है, रॉक बोल्डर्स एक्सेट्रा, वही से हमारा ये प्यूमाइस जो है वहीं से आती है। आप बैथोलिथ की बात करें तो बैथोलिथ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हो गया, ठीक है। तो क्वार्टजाइट डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आंसर करके आ सकते हो। आप जाते हैं 4th क्वेश्चन पर। इन जियोग्राफिकल स्टडीज द टर्म रॉक मीन्स, तो ये रॉक का मीनिंग क्या है, यही लास्ट क्वेश्चन है। रॉक का मीनिंग क्या है। तो सॉफ्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, डेफिनेटली नॉट। हार्ड एंड बिग पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, डेफिनेटली नॉट। एंड हार्ड एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल, डेफिनेटली नॉट। ऑल द मटेरियल्स बाय व्हिच द क्रस्ट इज फॉर्म, तो ये आई थिंक दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल द मटेरियल्स बाय व्हिच द क्रस्ट इज फॉर्म्ड, वही सारे रॉक्स है ना। आई थिंक दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो यही 4 क्वेश्चंस मैंने डोर स्टेप ट्यूटर से लिया है, ठीक है। आप अगर सर्च करोगे सर्च कर सकते हो, अगर और भी है या उन्होंने अपडेटेड किया है तो आपको वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऐसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखने के तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थैंक्स अ लॉट टू द एफर्ट्स ऑफ डोर स्टेप ट्यूटर ऐसे करके बोला है, बट इन्होंने क्या है सब्सक्रिप्शन लगा कर रखा है, तो आंसर आपको नहीं दिख पाएगा वेबसाइट पर। आपको या तो बुक में ढूंढना पड़ेगा अगर आपको पता नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है। वरना सारे सही है। तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर ना भी पसंद आए तब प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही मेरे को एनकरेज करेगा और भी वीडियो बनाने के लिए, और मेरे को इम्प्रूव करने के लिए ये इंस्पायर करेगा, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।